Hello everyone, this side Poonam Grover from St. Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar Gurugram. Today I am delivering the lecture on DSD, that is Digital System Design, that is came under for both CSE and Electrical 6 semester student. So I will come the series, that is lecture number series under unit 4, not under unit 3 here, that is under unit 4. So by mistake I will mention here unit 3, and again you can come with your basic component of a computer. Clear? So in my today lecture we are cover the various topic, that is basic component of computer. The second one is elements of a computer system, block diagram of a microcomputer, three basic unit of microcomputer system, and the architecture structure of a single chip microcomputer. Now in the last topic, that is a very interesting topic in all of the video, that is 4-bit ALU design with the help of your VHDL. इट मीन्स आज की वीडियो में मैंने कंप्यूटर के बेसिक्स क्लियर किए हैं, और उनमें से जब बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो जो कंपोनेंट कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी हम डिजाइनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर VHDL also in my today videos, and also which also in the coming videos. So we are come with your basic component of a computer. uh, Computers is simple words or machine that perform a set of function according to their users direction. Going by this definition, several electronic devices from laptop to computers are computers. It means जब हमें like कुछ function perform करना होता है या कोई set of function perform करने हैं तो हम किसी machine के through जब भी हम कोई step लेते हैं, that is called a computer. So calculator से लेकर computer तक हर एक चीज को आप computer की form में मानेंगे. So computer comprises of some basic elements. These include hardware, software, programs, data, and connectivity. No computer function इन द एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट. यानी कि अगर आपने कंप्यूटर से कोई फंक्शन करवाना है तो आपके कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, कुछ प्रोग्राम्स भी होंगे जो आपके उस पर्टिकुलर फंक्शन को करवाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे. डाटा होगा आपका और प्लस कनेक्टिविटी होगी कंप्यूटर के साथ. ठीक है. नो कंप्यूटर, नो फंक्शन जो है वो इन एलिमेंट्स के थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. अपार्ट फ्रॉम दीज एलिमेंट, अ कंप्यूटर सिस्टम comprises the three basic components that is responsible for all of the working of your computer. So that component is called your input unit, center processing unit, and one is called your output unit. So as per the figure you can see that in your daily life computer, as per your desktop computer, we can desktop computer compare with your that three of the system. Your as per the desktop computer you're giving the input from your keyboard, so that's why here the keyboard is the input device, and the center processing units which are came under in your CPU part, so that is called a central processing unit, and which are came under your CPU as a microprocessor which can process all of the related function which are typed from your keyboard. Then you can getting the output from your monitor screen. So here the monitor is example of your output. Clear? So here also we show some element of your computer, your input through keyboard and processing through any processor, either 8085 Intel, or in today application we can use the advanced version of your you can say Pentium, Intel i6, i7, and so on. And last one is your output device through monitor, or you can say printer. And here also we use the loudspeaker for getting your output. And one of the storage element which are connected with your processing. It means अगर आपने input से कुछ दिया है और उसे आप output में display नहीं करना चाहते हैं तो एज एन मेमोरी की फॉर्म में वो आपका यहाँ स्टोरेज की फंक्शन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. लेकिन आपने जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट है वो फर्दर एप्लीकेशन में दोबारा यूज करना है तो आप यहीं से क्या कर लोगे, इन्वोक कर लोगे इस चीज को. दैट्स व्हाई हियर वी यूज द बाय डायरेक्शनल हैरो for getting the output from your storage and giving the output from your processing element. So again you can come with your input unit. The component help enter the data and commands into a computer. So जब भी आपने कोई चीज एंटर करनी हो, कंप्यूटर से कुछ करवाना है, तो आप जो भी नंबर्स या एक्शन या कमांड देंगे that is in the form of input device. Clear? So the direct commands and data into computer. Computers can use their CPU to process the data and produce the output. तो क्या करेगा, जब आप कोई भी डायरेक्ट कमांड दोगे किसी कीबोर्ड से तो आपका वो जो कमांड है वो सबसे पहले सीपीयू में जाएगा. सीपीयू उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और आफ्टर सम डिले that will be produce a desired result on your output as per the monitor screen.
So for example, a laptop keyboard is an input unit that enter a number and character. Similarly, even a mouse can be input unit for entering the direction and command. And other examples includes that is barcode readers, magnetic ink charter readers, and optical character readers are the example of your input device. So another example of the input device is touch screen as per your mobile phone, and users can simply touch the screens without using any other device to enter the command. From smartphones to ATM machine, these input devices are becoming very popular in today's applications. So next come with your CPU. So as per the CPU contain your three of the part that is called your memory unit, arithmetic and logical units, and control units. It means CPU is a combination of your memory plus your ALU plus your control units. So memory, what do you mean by memory? Once the user enter the data using input device through keyboard, the computer system stores the data into its memory unit. So data will now remain here until the other component of CPU is processed it. तो कई बार क्या होता है कि सीपीयू जो है वो अभी प्रोसेस करने के लिए रेडी नहीं है, तो जो भी इनपुट हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं वो आपकी मेमोरी में क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा चाहिए तो आप दोबारा मेमोरी से इन्वोक करके उसको प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस करके उस उसको आप आउटपुट पे क्या करोगे, डिस्प्ले करोगे। सो द मेमोरी यूनिट यूजेस अ सेट ऑफ प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस टू फर्दर ट्रांसमिट द डाटा to other parts of the CPU. Next is called arithmetic and logic units, which can perform the arithmetic operation. It does basic mathematical calculation, so like addition, subtraction, division, multiplication, and etc. And the control units, it is a backbone of your computers. So it is responsible for coordinating tasks between all computer of a computer system. The control units collects the data from the input unit and send it to the processing units depending upon the nature. Finally, it is also further transmit processed data onto your output unit for यूजर्स। इट मीन्स जो आपका डाटा कब आपका इनपुट से आपका प्रोसेसर के पास जाएगा और प्रोसेसर जो है कब आपको उस डाटा के ऊपर प्रोसेस करके विद द हेल्प ऑफ मेमोरी उस रिजल्ट को आपके आउटपुट पे स्क्रीन पे शो कर देगा या फिर दोबारा मेमोरी में सेव करेगा। that all of the phenomena controlled by your control units. So the last units here, that is called your output unit. So that is the third and final component of computer system, is the output unit. After processing the data, it is converted into format of humans can understand. So after conversion, the output unit display these data to users. Example, output device are monitors, screen, printers, and speakers. So thus output unit basically reproduce the data formatted by the computer for user benefit. So here we mention the block diagram of a simple microcomputer systems. So here we use a input device, input net, you can see external peripherals also here, and also it means अगर आपको किसी बाहर के डिवाइस से इनपुट लेके आपके कंप्यूटर को देनी है तो that will be connected to your external peripherals here. So here we use the input unit, memory unit, ALU stand for arithmetic and logical units, that is called your control units, and the last one is called your output unit. तो इसमें फंक्शन कैसे होगा, जैसे आपने कीबोर्ड से बाहर से जो भी किसी लाइक जो पेरिफेरल है वो आपकी इनपुट को आपको इनपुट देना चाहता है किसी कंप्यूटर को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी इनपुट को इनपुट यूनिट के अंदर टाइप करेगा। तो वो उसकी मर्जी है कि उस इनपुट को at a particular time पे उसने परफॉर्म करना है सीपीयू। तो सीपीयू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एज डिस्कस इन माय प्रीवियस स्लाइड्स, सीपीयू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर मेमोरी, एएलयू एंड योर कंट्रोल यूनिट्स। तो जब आपकी जब इनपुट कीबोर्ड से आती है तो आपने उस इनपुट पे प्रोसेस करना है या मेमोरी में स्टोर करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर how the input is working as per your requirement. तो आप अगर सपोज करो आपने उसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को दिया, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ने आपके इनपुट पे कुछ अर्थमेटिकल लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको मेमोरी में दोबारा क्या कर दिया, फर्दर सेव करवा दिया। तो आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट डाटा फॉर ऑल ऑफ द एनालिसिस व्हिच आर टेकिंग बाय योर इनपुट यूनिट, and you can create a final result from your memory to your output device and on your monitor screen. So the control units controls all of the phenomena which we can done taking our input from your input and came under process with the help of your arithmetic and logical units, and at which time that will be delivered to your output, that will be decided by your control unit. So that is a basic building block diagram of your microcomputer system.
सो हेयर वी आल्सो मेंशन द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स क्या करता है आपका कि जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, अर्थमेटिक लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस, एंड द लॉजिकल इज कॉल्ड योर एंड और नोट that will be performed by your ALU. And the control units, so that is a basic, you can say, backbone of the computer. The control unit is responsible for fetching instructions from main memory and determining their type. जैसे सपोज करो कि आपने लाइक इनपुट से 2+3 को ऐड करवाना है, ठीक है, तो आपने कीबोर्ड से टाइप किया 2 देन प्लस ऑपरेटर देन 3, ठीक है, तो ये नहीं है कि आपके वो ऑपरेटर सिंपली काम करता है, आप मेमोरी के अंदर दो यूनिट्स होते हैं, रोम एंड रैम। तो रोम दैट इज कॉल्ड रैंडम रीड ओनली मेमोरी एंड रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो भी आपका डाटा स्टोर होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के वक्त वो आपका रैम में स्टोर होता है, और जो प्रोग्रामिंग फाइल है और सॉफ्टवेयर फाइल है वो आपने रोम में पहले से स्टोर करवा रखी हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप 2+3 एंटर करते हो, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जो कि आपकी कहाँ पड़ी हुई है, you can say predefined instruction in store in your ROM that will be fetched from your ROM, वो ROM से fetch होंगी और arithmetic logical unit की help से वो अपना function perform करेंगी, then you can getting the output at your output screen। तो उसने ये लिख रखा है यहाँ पे कि ये fetch instruction को fetch करता है from the main memory, memory से, यानी कि मेन मेमोरी दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर रोम प्लस रैम, वो रोम से फेच करेगा और फेच करने के बाद उसको क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या है, इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन सच एज नंबर और कैरेक्टर डाटा। बाय स्टोर वी मीन दैट मेमोरी हैज एबिलिटी टू होल्ड द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग द लेटर टाइम्स। ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम पे आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है, आप कुछ टाइम के लिए अपनी आउटपुट को मेमोरी में सेव कर सकते हैं और जब आपको जरूरत हो तब आप उसे आउटपुट पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो आपको ये भी पता है कि आपकी जो मेमोरी है दैट विल बी टू टाइप्स, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली memory is called your non-volatile memory. It means at one time it will be save the program, it not be changed, but in case of a RAM you will be change the program as per your requirement. So here we mention your various type of ROM, that is called your mask ROM and your PROM, or you can say EPROM. In mask ROM cannot be changed or erased internationally or otherwise. The data in the mask ROM are interested during the manufacturing, essentially by exposing a photosensitive material through a mask containing the desired bit pattern and then etching away the exposed or unexposed surface. These may only to change the program in a mask ROM is to replace the entire chip. उसने ये बोला है कि अगर हम मास्क रोम यूज करते हैं तो जो पोर्शन हमें चाहिए है, इट मीन उसने बोला है दैट विल बी यूज एज एन बिट पैटर्न फॉर योर सेविंग द डाटा ऑन योर रोम। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, लाइक हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए है उसके ऊपर मास्क नहीं लगाएंगे, और जो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, मास्क लगाएंगे। तो वो मास्क लगाने से वो डिपेंड करता है कि वो मास्क आपका ट्रांसपेरेंट है या ओपेक्यू है। तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू मास्क के थ्रू आप डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को लाइक रोम के अंदर स्टोर करवा सकते हैं और जब आपको फर्दर रिक्वायरमेंट हो उसे वहीं से फैच कर सकते हैं। प्रोम क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल रोम। तो इसके अंदर मैंने प्रोम का जिक्र हमने पीएलडी डिवाइसेस के अंदर किया था। तो पीएलडी डिवाइसेस मैंने पहले भी बताया था, दैट विल बी कैरेक्टराइज्ड इनटू योर प्रोम, पाल एंड पीएलए। प्रोम के अंदर आपका एक एरे फिक्स था, आई थिंक दैट विल बी एक, आप किसी भी पीएलडी डिवाइसेस के अंदर आप एंड और ओर एरे का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे थे, तो प्रोम इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ योर एंड एंड ओर एरे। सो इन दैट केस योर एंड एरे क्या था, फिक्स था, और ओर एरे क्या था, आपका प्रोग्रामेबल था। तो उसके बाद क्या है आपका ईप्रोम। ईप्रोम क्या है, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोम्स। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए हम अल्ट्रावोलेट या पल्सेस को पास करेंगे। सो जितने टाइम के लिए उसे पास करेंगे वो पोर्शन आपका वहां से क्या हो जाएगा,
remove हो जाएगा. That is called your EEPROM, or you can say electrical erasable ROM. Next we can come with your RAM. RAM is called a random access memory, जो कि आपकी क्या है, volatile है. तो अगर इसके अंदर पावर चली जाती है तो रैम के अंदर जो भी पड़ा है वो आपका क्या हो जाएगा, लोस्ट हो जाएगा. तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ सीपीयू से बैकअप प्रोवाइड होता है, तो विद इन सेकंड्स के अंदर हमें अपना डाटा क्या करना होता है, सेव करना होता है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रैम. RAM is also further categorized into your SRAM and your DRAM. SRAM stand for your static RAM and DRAM stand for your dynamic RAM. SRAM are constructed internally using circuit similar to the D-latch. These memories have the property that their contents are retained as long as power is kept on. Clear? But in case of your DRAM, you can say dynamic RAM is an array of tiny capacitors, each of which can be charged and discharged, allowing the 0 and 1 to be stored. Because of electrical charge tends to leak out, each bit in a dynamic RAM must be refreshed after a few milliseconds to prevent the data from a leaky away. Clear? So here we also define one more diagram with the help of three buses, and we use the input port, CPU, memory, and your peripheral, and these all of the devices are connected to your bus. So in any processor that will be configured by your three buses, one is called your address bus, data bus, and your control bus. So the size of your address and data bus decide by at you can use आपने कितने बिट का प्रोसेसर लगाया है, वो 8 बिट प्रोसेसर है, 16 बिट प्रोसेसर है, या फिर आपका 32 बिट प्रोसेसर है. तो जितने बिट का प्रोसेसर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एड्रेस और डाटा लाइंस का साइज किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा. तो अगर वो आपका 8 बिट प्रोसेसर है, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी एड्रेस लाइंस कितनी होंगी, 15 होंगी, और डाटा लाइंस कितनी होंगी, 8 होंगी. लेकिन अगर वो आपका क्या है, लाइक 16 वोट प्रोसेसर है, तो उसके अंदर आपकी एड्रेस लाइंस 20 होगी और डाटा लाइंस कितनी होंगी आपकी 8 होगी. तो ये आपकी जो लाइंस होती हैं वो सभी फंक्शन के साथ इन्वॉक करती हैं, क्योंकि पेरिफेरल को जब आप इनपुट देते हो पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू, वो किसी एड्रेस पे स्टोर होती है, वो मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती है. तो मेमोरी से फिर सीपीयू उसको क्या लेता है, प्रोसेसिंग में लेता है, और जब सीपीयू अपना काम कर लेता है तो उसको पोर्ट के ऊपर क्या करता है, डिस्प्ले करता है. So these all of these four functions that will be interrelated with each other, or you can say interconnected with each other with the help of your address bus, data bus, and your control bus. So here we also mention the working of your address bus, data bus, and control bus. So address bus is called your transmits the address signal emitted from CPU to memory and input port. It means जब भी हम कुछ input से enter करते हैं तो CPU के अंदर जो memory होती है उस मेमोरी के अंदर जाके वो एड्रेस इनपुट क्या होगी, स्टोर हो जाएगी आपकी. डाटा बस क्या है, दैट इज कॉल्ड बायडायरेक्शनल बस. यानी कि जब आप उस डाटा के ऊपर प्रोसेसर के थ्रू फंक्शन कर लेते हो, ठीक है, तो या तो उसको आप आउटपुट डिवाइसेस को देते हो या फिर मेमोरी के अंदर स्टोर करवाते हो. सो दैट डाटा बस विल बी रिप्रेजेंट बाय योर बायडायरेक्शनल एरो. Clear? Again you can come with a control bus. So the control bus is used to transmit the control signal such as the read, write, and interrupt control signal. Here we also mention architecture structure of a single chip microcomputer. So single chip stand for your you can say a single chip होगी उसके ऊपर, जो कि पूरे माइक्रो कंप्यूटर के फंक्शन को क्या कर लेगी, हैंडल करेगी. यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया हुआ है जो कि नेसेसरी क्लॉक साइकिल जनरेट करेगा फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ योर माइक्रो कंप्यूटर. दैट इज कॉल्ड योर आउटपुट कंपोनेंट, और यू कैन से इनपुट कंपोनेंट. जब भी आप कोई भी इनपुट एंटर करोगे तो आपका इस कंप्यूटर की चिप के अंदर जाके वो इनपुट क्या होगी, स्टोर होगी, और आफ्टर सम प्रोसेसिंग फंक्शन के बाद दैट विल बी डिस्प्ले ऑन योर आउटपुट कंपोनेंट. देन इज कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर फंक्शन that will be attached by a reset button. So here we also mention architecture of your single chip microcomputer. You can say block diagram of your single chip microcomputer. So here we also use a clock generator which can generate a necessary clock cycle for the operation of your processor, and that is called your central processor units. That is a main building block of your microcomputers, and that is called your internal control, and that will be provided by your external interrupt. Clear? ठीक है. Next is called your data memory, ROM and RAM.
system buses, that is a combination of your address bus, data bus and control bus, and that will be buses will be connected to your peripheral and your output port. So peripheral, here we use the timer, UART, A to D converter and D to A converters, but in case of your input port, we can use the external components here. So here the clock generator क्या करता है, that provide a clock device that emits the periodic sequence of pulses. These pulses define the machine cycle. During each machine cycle, some activity occurs such as execution of an instructions. आपने प्रोसेसर में इस चीज के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर जितनी जो इंस्ट्रक्शंस जो है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए आप अपने रोम में से फेच करते हो, जैसे मान लो सपोज करो कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने प्रोसेसर में रीड किया होगा कि आप प्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन यूज करते हो, मूव ए कोमा बी, ठीक है। तो प्रोसेसर में हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज कितना होता है, 8 बिट होगा या 16 बिट होगा, 24 बिट होगा। तो सपोज करो कि हम ये कहते हैं कि मूव ए कोमा बी, मतलब कि बी के कंटेंट को आपने कहाँ मूव करना है, ए में मूव करना है। तो जब आप बी के कंटेंट को ए में मूव करोगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर 8 बिट इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि आपके बी के कंटेंट ए में आ रहे हैं, तो वो ए का साइज इसके अंदर कितना है, डाटा बिट का साइज 8 बिट का है, तो सब सारी चीज आपकी 8 बिट की फॉर्म में परफॉर्म होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करने के लिए आपको टोटल 5 साइकिल लगते हैं। कैसे लगते हैं, मूव स्टैंड फॉर योर ऑपकोड एंड ए बी स्टैंड फॉर योर ऑपरेंड। तो ऑपकोड को मेमोरी से फेच करने के लिए हर बार आपको कितने साइकिल लगेंगे, 3, ठीक है। और जो बाद वाला पार्ट है ए एंड बी और अदर मेमोरी लोकेशन, दैट विल बी नॉट फिक्स, सो दैट विल बी वेरिंग इन नेचर, सो इन दैट केस वी रिक्वायर 2, 3 and 4 more critical cycle. So the every instruction in case of your 8-bit CPU, that will be executed in your 4 or 5 machine cycle as per the instruction size. Next is called your CPU. What do you mean by CPU? CPU is the brain of the computer. Its function is to execute the program stored in a program memory by fetching their instructions. So examine them, then executing the one another program. The CPU is composed of several distinct parts. So the CPU is a combination of your ALU, memory, and plus your control unit. So the here we also mention one main block, that is called your interrupt block. So interrupt request signals may come from the on-chip peripheral, such as timer, control, or external device such as keyboard. The interrupt control circuits receive these requests and determines which request is acknowledged according to the priority level specified. जैसे यहाँ पे इंटरप्ट जो है, आपकी दो तरह की इंटरप्ट होती हैं, कुछ यूजफुल होती हैं, कुछ यूजफुल नहीं होती हैं। तो यहाँ जो इंटरप्ट्स आ रही हैं वो कुछ यूजफुल फंक्शन हैंडल करवाएंगी। उस यूजफुल फंक्शन के थ्रू आप क्या करेंगे, जैसे आपने कोई इंटरप्ट आई बाहर से, तो वो आपसे अपना लाइक कोई टाइमर काउंटर का फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहती है, या फिर वो कोई ए टू डी और डी टू ए कन्वर्जन करवाना चाहती है, तो आपको वो रिक्वेस्ट भेजेगी विद द हेल्प ऑफ फिर इंटरप्ट कंट्रोल के थ्रू, ठीक है। अगर आप सीपीयू आपका फ्री है तो उसकी रिक्वेस्ट को ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर सीपीयू आपका ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या ऑपरेशन में है, तो ये इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका डाटा मेमोरी। डाटा मेमोरी क्या है आपकी, द डाटा मेमोरी is our RAM is used for store the data, a part of on chip data memory is used to store temporary results and certain control information. These memory consist of a number of registers and a certain functions. Next is called your program memory, that is called जहाँ आपके program पहले से like पहले से store किए हुए हैं, that is called your ROM, which not be changed during execution. So that is example of your PROM, EPROM, double EPROM, and your flash memory. So that is example of your program memory, you can say ROM, or data memories which can came under your RAM. Last one is called your IO port. So so IO port, through output IO port we can connect our external device to your CPU, and such as switches and LEDs हम use करते हैं. So by the use of switches we can connect the external device to your CPU or any other uh,
any other connectivity will be shown by your IO ports. On-chip peripheral, the on-chip peripheral circuits are single-chip microcomputer, offer various special control functions such as timer and counter, serial ports, PWM, ADC and DA की। यानी कि on-chip peripheral से क्या होगा कि आपके पास एक्स्ट्रा पोर्ट्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स के थ्रू आप कुछ एक्सटर्नल इंटरफेस के थ्रू आप कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन हेल्ड करवा सकते हैं थ्रू योर माइक्रो कंप्यूटर चिप, लाइक PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करवा सकते हैं, ADC और DAC, यू कैन से एनालॉग टू डिजिटल conversion or digital to analog conversion, sorry, clear. So that is the main building block of your you can say microcomputer, you can say basic architecture of your computer systems. So here the main topic which you can cover with the help of your VHDL, that is called your design and implementation of your microcomputer सिस्टम। यानी कि आपका कंप्यूटर जो है वो वेरियस एलिमेंट से कनेक्टेड था, जैसे मेमोरी, कंट्रोल यूनिट्स और यू कैन से ALU। तो जो भी पार्ट आपके कंप्यूटर से अटैच है, यानी कि इनपुट कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या फिर मॉनिटर स्क्रीन होगी, तो अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर VHDL कोडिंग, और यू कैन से कोडिंग करेंगे। तो मैंने आज अपनी वीडियो में ALU जो है दैट इज स्टैंड फॉर योर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, उसको मैंने एक प्रोग्राम के थ्रू क्लियर किया है। उस प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए मैंने ALU की फंक्शन को जो है वो 3 बिट की फॉर्म में डिफाइन किया है, फ्रॉम 0 डाउन टू 2। सो फंक्शन क्या होगा, अगर तीनों 0 है तो ओनली वैल्यू पास A। आपके जो ALU के पास दो वेरिएबल्स हैं इनपुट पे, A एंड B, और y आपका आउटपुट है, और जो दो वेरिएबल्स इनपुट पे आ रहे हैं बिट, उसका साइज कितना है 4, फ्रॉम 0 टू 3 ईयर एंड 0 टू 3 ईयर, क्लियर। तो आपकी टोटल इनपुट्स कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएंगी। और आपने इसके अंदर जो वेरियस कंडीशंस प्रूव हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर नेगेटिव फ्लैग, zero flag, overflow flag and carry flag, that will be invoked as per the function do by your arithmetic and logical units। उसके अकॉर्डिंग ये फ्लैग क्या होंगे, आपके अफेक्टेड होंगे। तो ALU जो है वो आपका कौन कौन सा काज परफॉर्म कर सकता है, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक, इट मींस अरिथमेटिक फंक्शन करेगा और लॉजिकल फंक्शन करेगा। सो उन अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शन को मैंने अपने टेबल्स में कुछ वैल्यू से असाइन किया है कि अगर आपका वैल्यू जो है इनपुट की 0 डाउन टू 2 है तो वो 3 बिट की फॉर्म में डिफाइन की जाएगी। अगर आपकी तीनों बिट 0 हैं तो आप ओनली वैल्यू पास A पास करोगे। अगर वो 0 0 1 है तो आपका A B के साथ क्या करेगा, एडिशन फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर 0 1 0 है तो A B के साथ सब्ट्रैक्शन फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर 0 1 1 है तो B माइनस A होगा। अगर 1 0 0 है तो उसका क्या होगा, वो इन्वर्ट करेगा। सो इस तरह हमने 3 बिट की फॉर्म में ALU के सारे फंक्शन क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा है ALU के लिए। तो नेचुरल सी बात है, आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो, चाहे आप बिहेवियर से बनाते हो, चाहे आप स्ट्रक्चरल से बनाते हो, या चाहे आप डाटा फ्लो से बनाते हो, सबसे पहले उसकी एंटिटी क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। तो मैंने ये प्रोग्राम जो मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जो बिहेवियरल कोडिंग है, दैट इज द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ द कोडिंग प्रोसेस। सो फॉर द डिजाइनिंग ऑफ योर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एंड द पार्ट्स ऑफ योर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम with the help of your VHDL coding, that will be came under in your behavior modeling style. So here we mention, firstly you can declare the entity। so here we write the entity for ALU। तो मैंने ये जो VHDL कोड लिखा है 4 बिट ALU के लिए लिखा है। अगर आप 4 बिट से 8 बिट बनाना चाहते हैं या 2 बिट बनाना चाहते हैं तो भी आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। वैसे सिंपली मैंने आपको एग्जांपल 4 बिट का दिया है, लेकिन एग्जाम में मेनली यही आता है, यू कैन डिजाइन द ALU, नेवर से आइदर 2 बिट 4 बिट और 8 बिट। अगर वो कहता है तो आपको उसी वजह से डिजाइन करना होगा। तो अगर हम ALU की देखें, तो अगर आपने ALU का जो ब्लॉक डायग्राम देखा है उसके अंदर आपकी A और B इनपुट्स हैं और ये सारे फ्लैग्स हैं, और प्लस Y आपकी क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है। और यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, अगर आपकी जो इनपुट्स हैं वो 4 है इनपुट्स पे, उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्रोल फंक्शन क्या करेगा, इस ALU को काम करवाएगा। क्लियर, कि कब आपकी इनपुट 0 0 होगी, उसने कब ऐड फंक्शन परफॉर्म करना है, सब करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक एक लाइक अगर आपकी जो है
यहाँ पे उसने एक फंक्शन लिखा है 2 डाउन टू 0 अब्यूज की फॉर्म में। तो उसने क्या लिखा है, तो वो भी आपका क्या होगा, इन एसटीडी लॉजिक। तो यहाँ पे एक एलयू सेलेक्ट फंक्शन है ये वाला, क्योंकि आपकी जो इनपुट है वो टोटल 8 है। तो टोटल 8 इनपुट है, दैट विल बी परफॉर्म बाय टू द पावर 3। तो आपकी सेलेक्शंस कितनी हो जाएंगी, आपकी 3 हो जाएंगी। क्लियर। तो एलयू इज सेम एज योर मल्टीप्लेक्सर्स। क्लियर। सो मल्टीप्लेक्सर के केस में आप क्या करते हैं, तो आपने एलयू सेलेक्टेंस को क्या लिखा, 2 डाउन टू 0, क्योंकि आपकी टोटल इनपुट्स कितनी है 8। तो उसके बाद क्या आपकी ए क्या है, 4 है, और बी भी कितनी है, 4 है। दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय योर 3 डाउन टू 0। और ये सारे जो फ्लैग हैं वे ये कब अफेक्टेड होते हैं, एज पर द रिजल्ट परफॉर्म बाय योर एलयू, आइदर अरिथमेटिक और आइदर लॉजिकल। उसके अकॉर्डिंग ये फ्लैग क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। इट मींस दैट डिपेंड्स अपॉन योर आउटपुट, सो दैट इज कॉल्ड योर आउटपुट फ्लैग। यू कैन से आउट एनएफ स्टैंड फॉर योर null flag, zero flag, carry flag और your overflow flag। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड योर वाव। अगर आपकी जो इनपुट है वो अगर 3 डाउन टू 0 है, तो आउटपुट भी क्या होगी आपकी 3 डाउन टू 0 होगी। सो दैट विल बी प्रेजेंट बाय योर 3 डाउन टू 0। सो हियर वी ओनली डिक्लेयर द एंटिटी फॉर योर एलयू एज पर योर डायग्राम। अभी हमने एंटिटी क्लियर किया है, अब उसका हम आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर बिहेवियरल कोडिंग। तो आपने क्या किया, कुछ केसेस बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ योर व्हेन स्टेटमेंट। तो व्हेन स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर आप का जो केस है, सॉरी एक वीडियो मिसिंग है यहाँ पे आपकी, उसने फर्दर सीधा इससे पहले आप कुछ केसेस इस तरह से मेंशन करेंगे कि व्हेन 000, अगर 000 है तो आपको ओनली पास ए वैल्यू पास होगी, किसको, टेम्प को। तो यहाँ पे आपने आउटपुट को फाइनल वाई को देने की बजाय एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्या कर रखा है, लाइक डिफाइन करवा रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस टेम्प पहले आउटपुट जो है वो आपके टेम्प के पास आएगी। टेम्प के पास आने के बाद वो क्या होगी, आपकी फाइनल वाई को असाइन होगी। तो सपोज करो कि आपकी इनपुट पे 010 प्रेजेंट है, तो अगर इनपुट पे 010 है तो आपका 010 पे क्या जा रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए माइनस बी। सो हियर वी आल्सो मेंशन टेम्प को क्या जाएगा, ए माइनस बी का सब्ट्रैक्शन। क्लियर। अगर a माइनस बी का सब्ट्रैक्शन है तो a भी 4 बिट है और y भी b भी क्या है, 4 बिट है। तो रिजल्ट भी कितना आएगा आपका, 4 बिट की फॉर्म में आएगा। और वो किसको जा रहा है, किसी टेम्प नाम के वेरिएबल्स को, फ्रॉम 3 डाउन टू 0। क्लियर। तो जब आपने a और b को ऐड किया उसके अकॉर्डिंग आपके 3 फ्लैग इफेक्टेड होंगे, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड योर वी कैन से योर कैरी फ्लैग। ठीक है। तो आपका जो टेम्प 4 आएगा, लाइक आपका जो अगर थर्ड 3 बिट का तो रिजल्ट आएगा और चौथा बिट जो एमएसबी की फॉर्म में शो होगा वो आपका कैरी शो करेगा। वो कैरी आप कैरी फ्लैग को दे दोगे। क्लियर। अगर कैरी फ्लैग आ रहा है तो उस टाइम में क्या करेगा, जो आपका आउटपुट फंक्शन है वाई बी, ठीक है, वो आपका जोरिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा A3 के साथ, B3 के साथ एंड योर CFV के साथ। यू कैन से योर कैरी फ्लैग वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद अगर कैरी फ्लैग आता है तो हम उस कैरी फ्लैग वेरिएबल को, कैरी फ्लैग को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। एंड सेम एज फॉर योर ओनली ये लॉजिक अलग हो जाएगा। आपका 010 पे a माइनस बी हो रहा है तो 011 पे क्या हो रहा है, b माइनस ए। एंड द मेन कोज फर्दर सेम, अगेन एट 100 पे क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। तो 100 पे y को क्या जा रहा है, यानी कि आउटपुट वेरिएबल्स को नोट ऑफ ए। एंड 101 पे क्या जा रहा है, a एंड b। क्लियर। सो अगेन you can use here, so last one you can mention when others, अगर इनमें से कोई भी केस नहीं आता है तो आपके आउटपुट को ओनली वैल्यू क्या असाइन होगी, ए असाइन होगी। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एक लास्ट में आपने एलयू के लिए प्रोग्राम तो बना दिया, लेकिन उस एलयू के प्रोग्राम्स को आपने फर्दर एक लाइक लूप के अंदर रोटेट करवाया है। तो उस लूप के अंदर रोटेट करने का मतलब क्या है कि आपने फोर लूप लगाया आई पे फ्रॉम 0 to 3 टाइम्स। क्लियर। ठीक है। तो आपका जो जीरो फ्लैग है उसको आपकी वैल्यू असाइन हो रही है। जीरो फ्लैग जो है आपका आउटपुट वेरिएबल के साथ क्या कर रहा है, और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर। सो अगर जेड फ्लैग 0 है, ठीक है, तो आपका वाई बी आई बी क्या होगा, 0 होगा। तो आउटपुट को क्या जाएगा आपका, इन दोनों का और होके जा रहा है। तो आपका आउटपुट पे क्या जा रहा है, वाई को, वाई वी, वाई जो आउटपुट वेरिएबल है वो आपका वाई को साइन हो रहा है। लेकिन जो जेड फ्लैग है वो आपका क्या है, नोट ऑफ जेड फ्लैग वेरिएबल है। और नल फ्लैग क्या है आपका, वाई वी 3 है। क्लियर। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, एंड प्रोसेस एंड एंड
ALU। एक्चुअली आप इस प्रोग्राम को यहाँ तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको आगे डिफाइन करना चाहते हैं तो डिपेंड्स अपॉन यू कि दैट विल बी डिफाइंड बाय यू और नॉट। So here in my today videos, I will cover the various topic that is your basic component of computer and its specification plus your architecture of your microcomputer systems. So I can explain each and every part one and one by one. So जो आपने फर्दर ये जैसे वीडियो देखी है क्लॉक जनरेटर CPU, तो इन सभी यूनिट्स की आप डिजाइनिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ VHDL। तो मैं कोशिश करूंगी इन माय next videos I will cover the whole topic which are related to your designing and implementation of your microcomputers systems। So आज मैंने ALU कवर किया है, तो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में CPU और मेमोरी कवर करेंगे। So also you can say write a VHDL code for your memory and plus your CPU। ठीक है, तो आज हमने एलयू के ऊपर फंक्शन परफॉर्म किया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप आपको यू कैन डिजाइन द 2 bit ALU और यू कैन से 4 bit ALU एज पर योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो अगर आपको इस चीज में कोई डाउट रह जाता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर।